Hello friends, our today's topic is on uh, chapter 2 of signal and system, and the topic is a continuous time linear time invariant system. Continuous time linear time invariant system. Okay, so it's a continuous CTLTI, continuous time linear time invariant system. Up till now what we have covered, that is a discrete time DTLTI. Okay, so that you have seen xn, here you will see xt. Okay, because it's a continuous time. So continuous time में हमें पता है कि टाइम डोमेन में आ रहा है, डिस्क्रिट में नंबर फॉर्म में डिफाइंड हो रहा था, कोई भी इक्वेशंस हो या थियोरेटिकल हो या एग्जांपल्स हो. सो जो चीज़ हमने डिस्क्रिट टाइम एल में डिफाइंड किया है वही फिनोमिना हम कंटिन्यूस में अप्लाई कर रहे हैं. तो इक्वेशन इज समवॉट सेम वी कैन से, यहाँ टाइम बेस हो जाएगा, एन की जगह टी हो जाएगा. ओके, सो टुडे वी विल सी सम मोर एग्जांपल of this continuous time LTI system. Okay, so before going to start with that, let's define that standard equation of that convolution. Okay, जो हमने ऑलरेडी डिफाइंड कर दिया था. ओके, फॉर द डिस्क्रीट टाइम में, सेम थिंग फॉर द कंटिन्यूस टाइम. ओके, so now let's start with that basic theoretical part. Okay, convolution of integral for a continuous time linear time invariant system. So convolution is nothing but a mathematical operation which is used as a tool by communication, okay, for the system analysis, probability थियरी एंड ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेशन. ओके, सो कॉन्वोल्यूशन हम हर बार बोलते हैं कि भाई कॉन्वोल्यूशन ऑफ दिस, कॉन्वोल्यूशन ऑफ दिस, कॉन्वोल्यूशन. सो कॉन्वोल्यूशन बेसिकली क्या है, तो इट्स नथिंग बट अ मैथमेटिकल ऑपरेशन. ओके, सो नाउ वी have clear with this. So now convolution can be performed in time as well as frequency domain. Okay, so today we will talk for the continuous time, it's a time domain. Okay, so now the convolution of two function xt and yt is defined as xt as yt is defined as integration minus infinity to infinity x to yt minus to d to. Okay, so here we have add one more variable, that is to, we can say d to. Okay, so not that here independent variable is t. Okay, is same as the independent of the function of xt and yt which are being convoluted. Okay, now the integration is always performed with respect to some dummy variable, and that is in this case is to, and t is treated as a constant form. Okay, so now the process of convolution involve the following operation of y2 and now x2. Now instead of xt we are using x2 and y2. Okay, now the so our the standard equation जो इसमें दिखाया हुआ है, दिस वन. ओके, सो अगर इसे हमें सॉल्व करना है तो हम किस तरह सॉल्व करेंगे, तो पहले हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे किसकी, एक्स टी की, सो मीन्स एक्स टू की. देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वाई टी माइनस टू. सो पहले हम वाई टू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर उसमें माइनस वाई टू फाइंड आउट करेंगे. पहले वाई टू, देन वाई टू, देन वाई माइनस टू, एंड देन सम डिले इज देयर टी माइनस टू. ओके, सो ये चीज़ हम फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो दैट इज़ गिवन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर जस्ट फोल्डिंग और टाइम रिवर्सल वाई टू, देन टाइम शिफ्टिंग टी y t minus 2 या y2. now the multiplication, then we have a multiplication accordingly the limit. Okay, so finally we got our convolution of x t into yt. Okay, so now some more theory is there to prove that in the form of now ht. Okay, यहाँ yt के फॉर्म में है, यहाँ हमें आउटपुट में ht, बिकॉज इट्स द इम्पल्स फॉर्म. सो इम्पल्स फॉर्म में हमें पता है कि जो y आउटपुट हमें मिल रहा है is nothing but xt into ht, xt into ht, where xt into ht, और ये ht है दैट्स रिप्रेजेंट योर इम्पल्स रिस्पॉन्स. ओके, सो ht is your impulse response, xt input, and yt is your output. Okay, so yt is your output and xt is your. Okay, so mathematically we have this standard
block diagram. If we solve this block diagram, which is we have already solved for the discrete form, okay, so same phenomena is here we can apply. So finally we can write this equation that we have. So instead of this now y t minus tau, I can put h t minus tau because it's a impulse response, delta t impulse response को हम डिफाइंड कर रहे हैं. ओके, सो वी कैन राइट दिस थिंग. Okay, so finally we have this equation that you can see here, that yt equal to xt delta t limit minus infinity to infinity x to ht minus to d to. Okay, so this is our final equation that we can say to solve some examples or to prove to understand the continuous time, linear time invariant. ओके, यही हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसमें. ओके, सो नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल कि भाई किस तरह इसमें सॉल्व होता है. जो हमने डिस्क्रीट एनालिसिस डिस्क्रीट एलटीआई में किया है वही फिनोमिना हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे. ओके, बट ये टाइम डोमेन में आ जाएगा. ओके, सो नाउ प्रॉपर्टी ऑफ कन्वोल्यूशन इंटीग्रल फॉर दी CTI. नाउ जो हमने डिस्क्रीट DT में किया था डिस्क्रीट टाइम में, दैट इज कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी मीन्स हियर x1t एंड x2t इज देयर. सो फाइनली वी के हैव दिस. और उसमें डिस्क्रीट में क्या था x1n x2n, यहाँ टाइम बेस है. देन वी हैव अ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी. ओके, एंड देन वी हैव अ एसोसिएट प्रॉपर्टी. ओके, सो डिटेल इसमें मैंने ऐड नहीं किया है कि भाई प्रूव करना और वो सब. ओके, वो हमने ऑलरेडी डिस्क्रीट टाइम में कर दिया है. ओके, नाउ लेट्स गो थ्रू द सम एग्जांपल सो यू हैव अ more clear about this. Okay, so some example is given in the form of this. They perform the following convolution of the in the time domain. Okay, where x1t equal to x2t equal to ut. दो सिग्नल्स दिए हुए हैं x1t and x2t. here x1 is your xt and x2t is your h. यहाँ दो दिए हुए x1t and x2t और दोनों क्या दिए हैं यूनिट ut यूनिट सिग्नल्स दिए हुए हैं. ओके, अब नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वोल्यूशन वी हैव दिस इक्वेशन. पर उसमें क्या चाहिए, एक एक्स टो चाहिए और एच के फॉर्म में चाहिए. सो आई कैन राइट हियर एक्स टी इक्वल टू एच टी इक्वल टू यू टी बिकॉज यहाँ यू टी दिया हुआ है. तो यहाँ जो x1 है वो एक्स टी है और h2t है वो x2t है वो एच टी है. और आई कैन राइट इंस्टेड ऑफ एक्स टी आई कैन राइट एच टो, तो आई कैन राइट यू टो. ओके, सो इसको हमने स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ एक्स टो एंड एच टो वी हैव, and that is nothing but a unit signal. So now let's draw, now solve the, we will solve this example by some graphical way first of all and then apply through the equation. Okay, now for a t equal to 0 टाइम t इक्वल टू 0 फॉर्म में अगर डिफाइंड करना हो. ओके, सो यूनिट एक्स टी क्या है हमारा, एक्स टी है भाई यू टी. तो उसका ग्राफ पता है कि भाई ये आएगा. और एच टी की वैल्यू अगर 0 लो तो एच क्या होगा, t माइनस 0 में t 0 हो जाएगा तो h माइनस 2 होगा. तो h माइनस 2 क्या आएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल h टू क्या आएगा, तो h टू कुछ इस तरह आएगा. सेम थिंग. ओके, सो दिस इज योर नाउ एक्स टी एंड दिस इज योर h माइनस टी. ओके, वो भी यूनिट है पर नेगेटिव साइन इज देयर तो सिग्नल इस तरह जाएगा. ए भी यूनिट है तो यू टी इस तरह, यू माइनस टी है तो वो इस तरह जाएगा. सही है. ओके, तो आप इन दोनों में देख सकते हो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, जो आगे इक्वेशन है हमारे पास कि भाई क्या है मल्टीप्लाई करना है इन दोनों का, तो मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, 0 वैल्यू आएगा क्योंकि कोई पोजीशन टच ही नहीं हो रहा है, ओवरलैपिंग ही नहीं हो रहा है. तो क्या आएगा, y0 0 वैल्यू हो जाएगी y की. ओके, नाउ लेट्स से कि अब t ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो कोई वैल्यू लेते हैं t की. इसमें जो ये इक्वेशन है ना इसमें t की कोई वैल्यू लेते हैं. सो नाउ लेट्स से नाउ
अब हमारा ग्राफ क्या होगा, तो एक्स टी तो यही रहेगा, बट एच टी माइनस टो होगा। अब टी माइनस टो होगा तो कहीं टाइम से स्टार्ट होगा, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, ये कि यहाँ से कुछ स्टार्ट होगा, ये इतना हमारा टाइम है, अप्रोक्सीमेट टाइम लिया हुआ, कोई भी वैल्यू हो सकती है। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो अगर इन दोनों को अब मैं मल्टीप्लाई करूँ, हमारे इक्वेशंस जो है हमारे पास एक्स टी एच टी माइनस टू, तो पता है कि इतना पोर्शन क्या हो रहा है, लैप हो रहा है, कि इसमें भी इतना आ रहा है, और उसकी एम्पलीट्यूड क्या है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। ओके, सो नाउ इन इक्वेशन, नाउ इक्वेशन वाई टी इक्वल टू 0 टू टी। अब पता है कि भाई लिमिट तो कहाँ से लेनी है, 0 टू टी, 0 टू टी, वैल्यू दोनों में क्या है, एम्पलीट्यूड 1 है, तो आई हैव रिटर्न 1 इंटू 1 दैट इज़ 1 इंटू डी टो। सो फाइनली इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 होगा। सो फाइनली आई गॉट वाई टी इक्वल टू टी फॉर अ टी ग्रेटर देन 0. ओके, so I hope you have a clear with this. Okay, if you go for the less than 0, okay, so one more thing is there for t less than 0, sorry, t less than 0. अब t less than 0 में टाइम, जहाँ यहाँ एडवांस टाइम डिफाइंड किया है, यहाँ डिले टाइम कोई भी अप्लाई कर दो तो वैल्यू क्या मिलेगा, वेव फॉर्म आपको कुछ इस तरह मिलेगा। तो ओवरलैपिंग हो रहा है, नहीं ओवरलैपिंग हो ही नहीं रहा है, तो भी उसकी भी वैल्यू क्या आएगी, टोटल ओवरलैपिंग 0 है, मतलब ओवरलैपिंग हो ही नहीं रहा है, तो उसकी भी वैल्यू क्या मिलेगी, आपको 0 ही मिलेगी। ओके, तो आउटपुट कब मिलेगा, ओनली फॉर द टी ग्रेटर देन 0. ओके, तो ये क्या किया है हमने, कुछ नया नहीं किया है, इस इक्वेशंस जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन था उसमें हमने वैल्यू रख दी है फॉर डिफरेंट लिमिट। एक हमने 0 के लिए डिफाइंड किया, फिर टाइम ग्रेटर देन कोई वैल्यू के लिए डिफाइन किया, और लेस देन 0 के लिए टाइम के लिए डिफाइन किया। ओके, सो I hope you have a clear with this examples. Okay, so it's a continuous time, linear time invariant. Okay, ये एग्जाम, इस टाइप के एग्जाम्पल हमने डिस्क्रीट टाइम में डिफाइंड किए हैं। ओके, okay, now let's see one more example so you are more clear about that. Sorry. Okay, so here it's given the perform the convolutions between given function in time domain. अब यहाँ दिया हुआ है क्या, एक्स टी की वैल्यू दी है यू टी, यूनिट सिग्नल दिया है, पर एक्स टू क्या दिया हुआ है, ई रेस टू माइनस टी, और फॉर किसके लिए दिया हुआ है, व्हेन टी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मीन्स ये यूनिट सिग्नल्स की भी प्रॉपर्टी है कि भाई यूनिट सिग्नल्स कब मिलता है, भाई जब टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। ओके, सो ई रेस टू माइनस टी का अगर आप वेव फॉर्म ड्रॉ करो तो दैट इज़ नथिंग बट इट लाइक दिस, ये मिलेगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ मिलेगा। ओके, सो हियर क्या दिया है, अब इसको x1 को हम h1 के एच टी कह देते हैं, तो एच टी दैट इज़ योर यूनिट सिग्नल, एंड x2 को हम एक्स टी कहते हैं, दैट इज़ ई रेस टू माइनस टी। अब ये फिनोमिना के हिसाब से हम लिख सकते हैं कि भाई ये तो यू टी है, मल्टीप्लाई यू टी, यूनिट सिग्नल से मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो अब क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स टी इंटू एच टी, हमारे पास ये इक्वेशन है, तो इसको हम कंपेयर करें तो एक्स टो भी क्या होगा, ई रेस टू टी की जगह टो कर देंगे, ई रेस टू माइनस टो यू टी, और एच टी यू टी मीन्स एच टो यू टो। ओके, एच टो यू टो। ओके, चलो अब अप्लाई करते हैं कि भाई इस इक्वेशंस में क्या फॉलो हो रहा है। तो स्टैंडर्ड पहले हमारे पास ये होगा ई रेस टू माइनस टो, और ये है। अब आप यहाँ देख सकते हो कि फॉर दिस सिग्नल्स, तो ये पोर्शंस तो ओवरलैप हो ही रहा है, कि इसमें जितना हो रहा है इस पर वो आउटपुट में मिल रहा है, मीन्स ओवरलैपिंग इज़ देयर फॉर दिस पर्टिकुलर वे, कि भाई ये हमने क्या ड्रॉ किया है, ये ई रेस टू मीन्स एक्स टी इक्वल टू ई रेस टू माइनस टी है, और ये यूनिट टाइम यू टी एच टी से डिफाइन किया है। अगर ये एच माइनस टो करूँगा तो क्या होगा, ये ग्राफ कुछ इस तरह जाएगा। ओके, तो ये ग्राफ जाएगा कुछ इस तरह गया। अब इसमें मैं टाइम डिफाइंड कर रहा हूँ, तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, उन दोनों का मल्टीप्लाई तो पता है 0 में, किस यहाँ कुछ ओवरलैप ही नहीं हो रहा है।
नाउ अब मैं कोई टाइम डिले प्रोवाइड करता हूँ, टी माइनस टो करता हूँ, तो इसमें टी माइनस टो करूँगा तो ये वेव फॉर्म कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ कुछ टाइम से स्टार्ट होगा, मीन्स मतलब दिस। अब यहाँ आप देख सकते हो कि भाई इतना ओवरलैप हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है मतलब ये इक्वेशंस अब अप्लाई कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू तो 1 है, और इसकी वैल्यू क्या है, ई रेस टू माइनस टू और टी। सो अगर आप उसे सॉल्व कर रहे हो तो वाई टी इक्वल टू क्या होगा, 0 टू टी एक्स टो, और एच टी टी माइनस टू की वैल्यू क्या है 1। ओके, सो फाइनली वी हैव अ 0 टू टू ई रेस टू माइनस टू डी टी। हाँ, उसका वो इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका होगा -1 ई रेस टू माइनस टू और नीचे होगा 1। ओके, बिकॉज टू के साथ है तो 1 हो जाएगा। ओके, सॉरी, अब ये देख सकते हो ओके कि भाई इसका इंटीग्रेशन किया हुआ है, टो है तो ई रेस टू टो होगा और नीचे 1 आ जाएगा, 0 टू टी। पुट द वैल्यू ऑफ दैट टो, दैट इज ई रेस टू माइनस टी, ई रेस टू 0, ई रेस टू 0, that is nothing but in the form of some way k1, or finally we have this equation 1 minus e raised to minus t. okay, so we can write this equation. okay, so इन दोनों का जो आउटपुट मिला वो हमें कुछ इस तरह मिला। ओके, फॉर t ग्रेटर देन 0। ओके, सो फॉर अ t लेस देन अगर 0 करना हो तो अगर t लेस देन 0 करना हो तो यहाँ दिख रहा है कि भाई t लेस देन 0 के लिए ओवरलैप मिल ही नहीं रहा है, तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0। तो फाइनली वी कैन राइट कि भाई वाई टी आउटपुट कब मिलेगा, जब t ग्रेटर देन 0 होगा, और वो वैल्यू क्या है 1 ई रेस टू माइनस टी, और लेस देन के लिए क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ओके, तो उसके लिए 0 वैल्यू मिलेगा। ओके, सो आई होप यू हैव क्लियर विद दिस एग्जाम्पल। ओके, सो नाउ देन वी हैव वन मोर एग्जाम्पल फॉर यू। ओके, सो मोर क्लियर अबाउट दिस कि क्या हो क्या रहा है इसमें। ओके, सो हियर परफॉर्म सेम थिंग, दो सिग्नल्स दिए हुए हैं, एक वाला ये रहा और दूसरे वाला ये रहा। इसको आप H1 को आप दैट इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ x कह सकते हो, और इसको h भी कह सकते हो। ओके, तो ये x टो हो गया आपका ई रेस टू 4 टो यू टो, ई रेस टू 4 टो यू टो, और h हो गया h2 हो गया u t माइनस 4, एंड दैट इज टो माइनस 4 वी कैन से। ओके, सो फाइनली वी हैव अ टो माइनस 4। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, ई रेस टू माइनस 4 टो यू टी, तो वो हमें पता है, वो तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ ही मिल रहा है। ओके, और एच टी माइनस 4 की वैल्यू क्या होगी, तो टी माइनस 4 कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है टी माइनस 4। अगेन यूनिट सिग्नल्स है बट डिले प्रोवाइड किया है 4 का। ओके, सो फाइनली वी कैन राइट फॉर दिस इक्वेशन भी, एच के लिए हम ये लिख सकते हैं अब कि भाई एच टी माइनस टू इक्वल टू 1 फॉर टी माइनस टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। अदरवाइज वो मीन्स फॉर दैट वी कैन से कि भी हमारी वैल्यू टी माइनस 4 से कम होगी तो ही हमें आउटपुट में 1 मिलेगा। ओके, अगर हमारा ये वैल्यू ये है कि एच टो इक्वल टू यू टी माइनस 4 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर मैं यहाँ माइनस एच टी माइनस टो कर देता हूँ तो वो आगे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये वाला पोर्शन ये प्लस से स्टार्ट हो रहा है, तो ये माइनस वाला पोर्शन उससे उल्टा होगा, ये एच टो है और ये एच टी माइनस टू। ओके, मीन्स एच माइनस टी। ओके, so I hope you have clear with this waveform. Okay, so now apply the same phenomena here. So we have a limit of that yt equal to 0 to t minus 4 h to h t minus 2 वो अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन है ई रेस टू टी और बाकी का यूनिट सिग्नल से। तो आउटपुट में अगर इसे हम सॉल्व करते हैं ई रेस टू, अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं हम तो क्या मिल रहा है कि भाई ई रेस टू 4 टो, तो उसका क्या होगा ई रेस टू 4 टो और टो के साथ जो है डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, और 0 टू टी माइनस 4 इसको हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली 1/4 कॉमन, ई रेस टू माइनस 4t बाई 4, 0 टू टी माइनस 4। सो फाइनली वी हैव दिस इक्वेशन, एंड अगर उसे भी सॉल्व कर रहे हैं तो फाइनली हमारे पास ये सॉल्व। सो क्लियर विद दिस वाई टी इक्वल टू ये मिल रहा है कब, जब हमने
डिफाइंड की है लिमिट. ओके, सो आई होप you have a clear with this example also. Okay, okay, so same we have including one more example. Okay, कि भाई सॉरी क्या लिया हुआ है यहाँ, वाई टी की वैल्यू ई रेस टू माइनस टू यू टी एंड दूसरा है यू टी प्लस टू. तो इसको एक्स टी कह दो और इसको एच टी कह दो और उसको कंपेयर करो एच टो के साथ और इसको एच टो के साथ. ओके, तो वही किया हुआ है सेम फिनोमेना. अब इसको इसमें सेट करना है. अब हमारे पास एच एक्स टो तो है, एच टी माइनस टू चाहिए, पर एच टो हमारे पास है तो टी का पहले नेगेटिव करेंगे तो इसको यू टी प्लस टू है तो माइनस यू टी प्लस टू फॉर्म में डिफाइन करेंगे और फिर इसमें डिले टी का डिले प्रोवाइड करेंगे. तो वेव फॉर्म कुछ इस तरह फॉर्म होगा हमारा. ओके, सॉरी, हाँ, तो अब वेव फॉर्म पहले वाला क्या ये रहा, दूसरे का एच तो यू टी प्लस टू होगा तो ये रहा हमारा. तो फाइनली वैल्यू ओवरलैपिंग फॉर्म में डिफाइन करना होगा भाई एच टी माइनस टू डिफाइन करना हो तो वो मिलेगा हमें ये वाला. तो इतना पोर्शन हमारा ओवरलैपिंग हो रहा है. तो इसमें ई रेस टू टी और इसका 1 यूनिट सिग्नल से, तो उसको हम डिफाइंड करें तो ये रहा हमारा इक्वेशन. उसे हम सॉल्व कर रहे हैं. लिमिट कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड की है, 0 टू टी प्लस टू, 0 टू टी प्लस टू. जहाँ ओवरलैपिंग हो रहा है उतना पोर्शन ही हमें कैलकुलेट करना है. ओके, उतनी ही लिमिट डिफाइंड करनी है, उससे ज़्यादा लिमिट डिफाइंड करनी नहीं है. ओके, सो नाउ इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका सॉल्यूशन इस तरह होगा. सिंपली इंटीग्रेशन इज दैट. ओके, सो आई होप यू हैव क्लियर विद दैट इंटीग्रेशन. ओके, with the value of that, so finally we have this equation. Okay, white. Okay, okay, so then we have also including one more example for you. Okay, so numbers of examples you have to solve this. Here again we have seen h t and x t. यहाँ दो वैल्यू डिफाइन किया है पर फाइनली वी हैव वन वैल्यू ओनली, बाकी तो ज़ीरो है. तो ये t ग्रेटर देन के लिए हमने दी है और ये 0 to 2 के बीच में है तब ली है. ओके, तो ये इन दोनों का अगर ग्राफ सिंपली ग्राफ डिफाइन करें तो ये रहा ग्राफ. ये एक्सपोनेंशियल के लिए, t ग्रेटर देन के लिए, और ये 1 कब मिलेगा, 0 to 2 होगा तब, तो 2 तक ही 1 मिलेगा. ओके, अब इसमें हम डिले प्रोवाइड फोल्डिंग करेंगे, -2 प्रोवाइड करेंगे और फिर टी से एडवांस फॉर्म में चलेंगे. ओके, तो पहले हम इसको -2 करें तो ये फोल्डिंग करें तो इस तरह होगा, फिर इसमें कुछ डिले टाइम का प्रोवाइड करें तो ये वेव फॉर्म कुछ इस तरह होगा. सो फाइनली वी हैव दिस मच ऑफ ओवरलैपिंग. ओके, सो एंड अगर उसमें एडवांस फॉर्म में चले जाएंगे टी लेस देन तो ये रहा ओवरलैपिंग ऑफ दैट. ओके, तो दो फॉर्म में हम डिफाइंड कर रहे हैं, दो एक 0 to 2 में भी आउटपुट मिलेगा और t-2 to t में भी हमें आउटपुट मिलेगा. ओके, आउटपुट मोस्टली सेम रहेगा पर लिमिट चेंज हो जाएगी. लिमिट चेंज होने के बाद आउटपुट में चेंज आ जाएगा. ये जो इनपुट है वो तो सेम ही रहेगा, वैल्यू सेम है, दैट्स वाई. ओके, पर लिमिट चेंज हो रही है और दोनों में हमें आउटपुट मिल रहा है. दोनों सर्किट्स में, दोनों ग्राफ में आप देख सक रहे हो कि ओवरलैपिंग हो रहा है. यहाँ भी ओवरलैपिंग हो रहा है, यहाँ भी ओवरलैपिंग हो रहा है. ओके, तो हमें आउटपुट दो फॉर्म में मिलेंगे, ये एक मिलेगा ये और एक मिलेगा ये. इसके लिए ये इक्वेशन फॉलो होगा, इसके लिए ये इक्वेशन. इसमें लिमिट होगी 0 to t और इसमें होगी -t/2 to t, -t/2 2. तो आउटपुट मिल रहा है और आगे वाला जो पोर्शन था 0 to t. ओके, तो दो बार हमें आउटपुट मिल रहा है, दो बार ओवरलैपिंग हो रहा है, तो दो बार हमें आउटपुट मिल रहा है. ओके, so I hope you have a clear with this continuous time, linear time invariant system. Okay, so here I just ended our session, that is a continuous time. Okay, so lastly you have assignment question for you, obtain the convolution of integral. Okay, simply unit signals दिया हुआ है but range is different. ये है -1 to 1 और ये है 0 to 2. Okay,
दोनों इम्पल्स फॉर्म ही है, बट लिमिट अलग अलग दी हुई है. सो यू हैव टू सॉल्व इन द सेम मैनर दैट वी हैव done. Okay, so I hope you have a clear with this. Now lastly we have a thank you very much.